Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. So today we will learn about the Sunnah way of eating. As you all can see on the screen, everyone can see the screen. Yes. If you can see the screen, just raise your hand. Okay. Very good. So in this class we are going to we are going to learn about the Sunnah way of eating. All of you have to know that Allah subhanahu wa ta'ala designed this whole earth according to the human being. The first thing is Allah subhanahu wa ta'ala sends rain from the clouds, and then he enables the land to fertile and grow vegetables and fruits for us. This is the source of food for us. I am telling you these things because today our topic is about eating food. Okay. सो हम फूड की ही बात करें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ क्या है, आसमान से अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ज़मीन को इस काबिल बनाते हैं कि ज़मीन हमारे लिए क्या उगाती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स. ओके. उसके अलावा ये तो हो गई ज़मीन से उगने वाली चीज़ें. इसके अलावा अल्लाह ताला ने जानवर पैदा फरमाए हैं जो हमारे लिए हलाल है, हम उन सबको क्या है ज़िबा करके खाते हैं. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. अब today in this class we will learn about the sunnah way of eating as according to our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उनका क्या तरीका था खाने का. We will learn in this class about this. Okay. Yeah. So here's the chart of sunnahs that we have to follow when we are going to eat anything. Okay. The first thing we have to do is to wash our hands. The first sunnah, as you all can see on the screen, is to wash our hand. We have to wash our hands before having our meal. Before we begin our meal, we have to wash our hands with soap or hand wash, anything we have to clean our hands from dust. Okay, we have to make sure that our hands are clean from any dirt and any क्या कहेंगे, कुछ भी हमारे जो है वो हाथों पर गंदगी वगैरह डर्ट कुछ भी नहीं होनी चाहिए. ओके वफा, आई सॉ योर हैंड. थैंक यू सो मच. ओके. तो सबसे पहली जो क्लीनलीनेस स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम आवर हैंड्स. बेसिकली जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू ईट, वी फर्स्ट थिंग वी विल यूज आवर हैंड टू ईट. तो क्या है सबसे पहली चीज जो हमें वही क्या है, वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स and make sure that our hands are clean. Now the second thing is to say bismillah. We have to say bismillah before starting our meal. Okay. So as our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whenever any one of you start having meal, you have to say bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahi wa ala barakatillah. Now please all of you just repeat I after. can't see your screen. Teacher, I can't see your screen. I can't see the screen. Okay, now you Teacher, I can can't see the screen. see. Now you can see. No, miss. No, miss. Okay, just wait for a while. Now everyone can see the screen. Yes. Yes. That's sure. Okay. Just please wait for a while. Yes, now everyone can see the screen clearly. Yes. Okay. Please, we have to recite dua before having meal. Everyone, please repeat after me. Dua before meal. Yes, please repeat after me. Dua. Dua before meal. Yes. Bismillahi
Bismillahi व अला wa ala बरकतिल्लाह. barakatillah. Very good. बिस्मिल्लाहि Bismillahi अला wa ala बरकतिल्लाह. barakatillah. Very good. So this is the dua we have to recite before having our meal. And if someone forgot to recite this dua before having meal, he or she have to recite this that अगर कोई ऐसा है कि जो खाने के शुरू में दुआ पढ़ना भूल गया बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, then he or she have to recite बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु. Yes. Everyone please repeat after me. बिस्मिल्लाहि Bismillahi अव्वलहु awwalahu व आखिरहु. wa akhirahu. So if someone forgot to recite dua before the meal, now Wa अब उसे याद आया है तो he or she have to recite this dua बिस्मिल्लाहि Bismillahi अव्वलहु awwalahu व आखिरहु. wa akhirahu. Very good everyone. Okay, so we are done from the second sunnah. Now number 3, the third sunnah we have to follow is to eat together. We have to attempt to eat together as often as we can. Okay, जहाँ तक हमारे लिए मुमकिन हो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें किस तरह खाना है, सबके साथ मिलकर खाना खाना है. Because this is the sunnah, not only the sunnah of our last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's also the sunnah of Ibrahim alayhi salam. Because he used to eat together. जब भी वो खाना खाना शुरू करते थे तो वो ढूंढते थे कि उनके साथ कोई ना कोई मिल जाए ताकि वो क्या करें, मिलकर खाना खाएं. अंडरस्टैंड एवरीवन? सही. So अगर if it's possible for us to eat with everyone, we have to follow this sunnah. And in this lockdown it's very easy for everyone to follow this sunnah because everyone is at home in these days. And it's possible for all of us to follow this sunnah that we can in these days we can eat together. So आप सब खाते हैं मिलकर खाना या फिर अलग से ही अपना खाना लेकर खा लेते हैं? मिलकर खाते हैं. अगर मिलकर खाते हैं तो just raise your hand. Raise your hand if you have the habit of eating together. Very good Wafa, very good Fatma, Hamad, very good. तो ये सुनना आप लोग सब फॉलो करते हैं माशाल्लाह. So now the number 4 is to sit on the floor. We have to sit on the floor while eating. जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम फ्लोर पर हम नीचे बैठकर खाएं, ऊपर बैठकर नहीं खाएं. सही. क्या कोई भी फ्लोर मैट आपका बिछा हुआ है या फिर कोई भी कारपेट है, कोई भी चीज़ है, तो हम उस पर बैठ के खाएं. तो फ्लोर पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर व्हाइल वी आर eating. But if it's not possible for you to eat on the floor, so it's allow for all of us to eat on the chair or whatever you have. Okay. बट अगर आप लोग ज़मीन पर बैठ खा रहे हैं तो ये क्या है, सुन्ना वे ऑफ ईटिंग भी है और ये आपके लिए क्या है, आपके स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इस तरह से इंसान कम खाना खाता है. जब हम ज़मीन पर बैठ के खाते हैं तो इंसान कम खाना खाता है और जब इंसान कम खाना खाएगा तो उसके लिए उसके स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि वो जब कम खाएगा तो उसके जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी अच्छा रहेगा और इससे इंसान हेल्दी रहता है. तो हमारी हेल्थ के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल इफ़ वी आर ईटिंग ऑन द floor. Okay. Now the number 5 is to eat with your right hand. We have to make sure that when we are eating or drinking anything, we have to use our right hand. Always use your right hand. Show me your right hand. Yes, very good. This hand we have to use whenever we are eating or drinking anything. Now the number 6 sunnah is to eat from your side. Eat from the side which is closest to you. अब एक जैसे एक है
कि अगर आपके सामने एक प्लेट रखी है, आप सब मिल के खा रहे हैं खाना, और एक प्लेट रखी है और उसमें एक ही टाइप का खाना है, लाइक राइस है या फिर सालन है, एक चीज है, तो क्या है, हमें अपने से सामने से ही खाना है। वी हैव टू ईट फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ प्लेट विच इज क्लोजेस्ट टू यू। अगर उस प्लेट में सिर्फ एक टाइप का ही खाना है, लेकिन अगर इस तरह के उसमें उस प्लेट में डिफरेंट चीजें हैं, लाइक फ्रूट्स हैं या फिर डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है, या फिर क्या बोलते हैं, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग अलग चीजें, तो फिर आप उसमें हाथ कहीं भी घुमाकर ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, बात तो ये सही है ना, बिल्कुल ये एटिकेट है, वी हैव टू फॉलो दैट। अगर कोई एक चीज है प्लेट में और आप बिला वजह ही आगे पीछे हाथ घुमाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एटिकेट के खिलाफ बात है। क्योंकि आपको आगे पीछे हाथ घुमाने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा, आपको यहाँ भी इस अपनी तरफ वाले पार्ट में भी प्लेट में वही मिलना है और दूर वाले पार्ट में भी वही मिलना है। तो क्या है, आपको सही तरीके से अच्छा तरीका खाने का क्या है कि आप वही साइड से खाना लें जो आपके क्या है सबसे करीब है। बट इफ यू हैव डिफरेंट आइटम्स इन वन प्लेट, तो आप अपना हाथ क्या है घुमा सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? एक मर्तबा क्या हुआ था कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु, ये क्या है, एक सहाबी हैं, और ये भी उस वक्त की बात है जब वो क्या है छोटे बच्चे हुआ करते थे, आप लोगों की तरह ही आपसे थोड़े छोटे थे। तो क्या है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे, तो लेकिन क्या है, वो अपने वो प्लेट में एक ही टाइप का खाना था, बट क्या है, वो बच्चे थे, जाहिर सी बात है, उन्हें नहीं पता था ये बात। तो क्या है, वो अपना हाथ घुमा घुमा कर खा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला का नाम लेकर खाओ और अपनी प्लेट के क्या है सबसे क्लोज पार्ट से खाओ। सो दिस इज द सुन्ना that our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us, that we have to eat from that part of plate which is closest to us. Okay, तो क्या है, आज से हमें सुन्ना को फॉलो करना है कि अब प्लेट की सबसे उस पार्ट से खाना है जो आपके करीब हो। अंडरस्टैंड एवरीवन? जी उमर, पीछे हो जाइए थोड़ा सा। Now, the seventh sunnah we have to follow while we are eating. Now, the seventh sunnah is that we have to eat with our three fingers. These three fingers will be the thumb, the middle finger, and the index finger. Please show me these three fingers. The thumb, yes, like Umar, thumb, index finger, and the middle finger. These three fingers we have to use when we are eating food. अच्छा, अब अगर इस तरह है कि if you are eating चपाती, तो इसमें तो ये three fingers use हो सकती हैं, and if you are eating with spoon, तो आप spoon use करेंगे। बट अगर आप इस तरह की कोई चीज़ खा रहे हैं जो आपको हाथों से खानी है, लाइक टोटली लाइक चावल खा रहे हैं, तो उसके लिए 3 से ज़्यादा मोर फिंगर्स भी यू कैन यूज, मोर देन 3 फिंगर्स इफ यू हैव नीड ऑफ इट। ओके, तो कम से कम फिंगर्स का यूजेज क्या है, आपकी क्लीनलीनेस को शो करता है। इट विल शो योर एटिकेट्स ऑफ ईटिंग, मैनर्स ऑफ ईटिंग। कम से कम आपका हाथ जो है वो खाने में जाना चाहिए, कम से कम फिंगर्स को आपको यूज करना चाहिए। सो द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग इज टू ईट विद just 3 fingers. But if you have need of more fingers, you can add more fingers in it. Okay, so the most important etiquette of eating is number 8: don't criticize the food. Okay, regardless of the taste, try not to do this. Okay, if you don't like the taste or the presentation of the food, please don't try to give negative compliments on the फूड। अच्छा, सुन्नत तरीका क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो सुन्नत तरीका क्या है कि आप उस चीज़ को नहीं खाएं। बट यू डोंट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द फूड। खाने की बुराई करने का किसी को भी राइट नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीवन?
यस। अच्छा, इसकी जो ऑपोजिट क्या है, एक सुनना। नंबर 9, प्रेज गुड फूड। हमें बुरे खाने की बुराई तो बयान नहीं करनी, बट सुनना क्या है, बुरे खाने की बुराई बयान नहीं करनी, बट वी हैव टू प्रेज गुड फूड। वी हैव टू लीव कॉम्प्लीमेंट इफ द फूड हैज गुड टेस्ट। सही, अगर अच्छा खाना है तो हमें उसकी तारीफ जरूर करनी है, लेकिन अगर खाना टेस्टी नहीं है या आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं, क्योंकि एवरीवन हैव डिफरेंट टेस्ट, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को लो स्पाइसेस पसंद है, किसी को कैसा, किसी को कैसा। तो अगर आपकी पसंद का खाना नहीं है तो जस्ट लीव द फूड, आप छोड़ दें, आप मत खाइए, कुछ और खा ले जो आपको पसंद है। बट इफ द फूड इज टेस्टी यू हैव टू गिव पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दैट द फूड इज टेस्टी। अगर कोई भी एक हम अगर अपने ऊपर एग्जांपल रख के सोचे ना कि आयशा इज कुकिंग वफा एंड किरत, दे आर कुकिंग समथिंग, इन्होंने कुछ बनाया है, और अगर इन्होंने कुछ अच्छा बना लिया तो हम अगर इनकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे ना, ऐसा है? आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ऐसा है ना कि आप खुश होंगे। और क्या है, तो सुनना तरीका भी क्या है कि अगर आपको खाना पसंद आया तो यू हैव टू गिव पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट ऑन इट। सही, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं बना या आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं है तो आप नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं दें, बस आप उस चीज को छोड़ दें। अगर आपने कोई खाना बनाया और किसी को पसंद नहीं आ रहा तो अगर वो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देगा तो आपको बुरा लगेगा ना, तो ऐसा ही है। तो इसी तरह से कोई भी अगर खाना बनाएगा या कोई भी खाना है किसी ने भी दिया आपको तो उसकी बुराई हमें बयान नहीं करनी, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। क्योंकि हमने पहले ये चीज सीखी कि क्या है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से इतना लंबा प्रोसेस है। लाइक अगर हम एक चपाती की बात करते हैं, जो हम रोटी खाते हैं डेली लाइफ में, हम रोटी खाते हैं, तो क्या है, रोटी इतने सारे प्रोसेस के साथ हम तक पहुंचती है। जब अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाते हैं, फिर वो ज़मीन को इस काबिल करते हैं कि ज़मीन क्या है हमारे लिए, वो ग्रेन्स, वो वीट क्या है उगाती है, फिर वो वीट किसान तोड़ते निकालते हैं, फिर वहां से वो फैक्ट्रीज में जाती है, फिर वहां से वो ग्राइंड होकर पैक होकर हमारे घर आती है, फिर वो आटा हमारे घर में गूंदा जाता है, फिर रोटियां बनती, मतलब 5-6 इतने सारे स्टेप्स, क्या इतने सारे लोग इसके पीछे काम कर चुके हैं, तब जाकर हमारे सामने एक क्या है, एक चपाती और एक रोटी आई है। और फिर अगर उसके बाद हम उस खाने की, अगर हमें रोटी नहीं पसंद तो हम मत खाएं, लेकिन हम अगर उस खाने की बुराई कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं है तो हम उसे बुरा भला कह रहे हैं, तो ये क्या है, नेमत की क्या है, नाशुक्री। अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर तुम, कुरान पाक की एक आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत की का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारी नेमत को और बढ़ा दूंगा। तो क्या है, अगर अल्लाह ताला की नेमत हमें पसंद आ रही तो हम उससे क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन कभी भी नाशुक्री वाले अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। तो अब हम बड़े हो रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू अडॉप्ट these sunnah and these etiquettes in our life. Okay, understand everyone? So number 10 is to don't waste food. This food includes that falls, जो भी हम अगर खाना खा रहे हैं और अगर खाना हमसे गिर भी गया, लाइक हमारे फूड मैट पे गिर गया, दस्तरखान पे गिर गया, तो हम अगर इफ इट्स पॉसिबल फॉर अस वी हैव टू क्लीन इट एंड देन ईट इट। क्योंकि ये भी क्या है, एक नेमत के शुक्र में ही आ जाता है ना कि हम अगर एक रोटी है, हम जब हमें भूख लग रही होती है हम बोलते हैं कि हमें रोटी मिल जाए, लेकिन अगर मिल गई और अगर वो थोड़ी सी गिर गई तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम उसे बिल्कुल ही उसके वो कर दें कि उसको कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी निगाह में। तो क्या है, शुक्र का एक तरीका ये भी कि हम उसको इफ इट्स पॉसिबल फॉर अस हम उसे क्लीन करें और फिर उसे खा लें। सही। नंबर 11 इज टू अवॉइड ओवर ईटिंग। क्या है, खाना भी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स भी क्या है, अल्लाह ताला की नेमत है। तो अगर हमने ओवर ईटिंग कर ली तो सबसे पहले क्या होगा, वी हैव नोजिया आपको फील होगा, फिर वॉमिट और कोई भी स्टमक इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, हमारी हर चीज का अल्लाह ताला ने हम पर क्या है हक रखा है, तो क्या है हमें अवॉइड करना है ओवर ईटिंग को। इतना ही खाना है दैट विल फिल योर टमी, जितना आप खाना आपकी टमी को फिल कर दे बस उतना काफी है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा खाना हमें नहीं खाना है। नाउ द 12th सुन्ना इज टू लिक योर फिंगर्स। अगर आप चपाती वगैरह खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसमें तो जरूरत नहीं है उंगलियां चाटने की या साफ करने की, और अगर आप स्पून यूज करें उसमें भी जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर यूजिंग योर फिंगर्स टू ईट योर फूड यू हैव टू लिक योर फिंगर्स आफ्टर फिनिशिंग योर फूड। जब आप खाना अपना कंप्लीट करें तो अगर जो भी थोड़ा बहुत खाना आपकी
फिंगर्स पर लगा है वो आपको क्या है, क्लीन करना है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्लीनलीनेस। ये भी क्या है, सुन्नत तरीका है, और ये सफाई में भी आता है आपकी कि कितना हम बुरा लगेगा कि हम इतने बड़े हो गए लेकिन अगर हमने खाना खाया और उसके बाद हमारे फिंगर्स पर हमारा कोई ना कोई खाना लगा है, तो ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन देता है। तो क्या है, अगर हमने खाना खा रहे हैं एंड वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स, तो वी हैव टू लिक आवर फिंगर्स आफ्टर फिनिशिंग आवर फूड। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जिस तरह से हमने खाना की जो इब्तिदा थी वो किससे की थी, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह से की थी, कि अल्लाह ताला का नाम लिया था। इसी तरह से जब हमने खाना फिनिश कर दिया तो हम क्या है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमारे लिए ये रिस्क क्या है हमें दिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम क्या है इस खाने को खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई बीमारी हो, क्योंकि हम जब बीमार होते हैं तो बहुत सारे खाने हम नहीं खा सकते, सही। तो क्या है, अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया और हमें इस काबिल भी बनाया कि हम इस खाने को खा सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट ही मेक्स अस एनेबल टू ईट दैट फूड, ओके। So everyone have to praise Allah subhanahu wa ta'ala after completing and finishing our food. So who will follow these sunnah from now onwards? Just raise your hand if you are ready to follow these sunnah. अब खाना तो हमें अब रात को खाएंगे, तो क्या है इन सुन्ना को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। इंशाल्लाह all of us will follow this sunnah because this is the perfect way of eating. जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें तरीका मिला है वो क्या है, परफेक्ट तरीका है। तो क्या है, हमें इनको फॉलो करना है और आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल फॉलो दिस सुन्नाह। रेडी एवरीवन? Okay. Yes. Thank you so much everyone. Now I am ending our class. Allah Hafiz.